टैक्सेशन या सीएफओ, किसमें ज्यादा टेंशन और किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन? दोनों में। कोई क्लाइंट या कंपनी जिसका बैलेंस शीट देख के ही आपको शॉक लग गया हो? एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की कंपनी थी जिसमें मैंने जब उसकी बैलेंस शीट देखी तो लिटरली शॉक। आपका स्टाइल एक्सेल मास्टर या गट फीलिंग गाय? एक्सेल मास्टर। रियल एस्टेट या फूड इंडस्ट्री, किसने ज्यादा पेशेंस टेस्ट किया आपका? रियल एस्टेट। फ्रैक्शनल सीएफओ बनने का डिसीजन या रिस्क या फिर स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी। फाइनेंस वर्ल्ड में एक चीज जो कभी समझ नहीं आई? प्लानिंग ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। एंड एक वर्ड में दर्शित ठक्कर को एक्सप्लेन करना। दर्शित ठक्कर इज अ विजनरी। दर्शित, let's start with some ice breaking rapid fire. Okay, so my first question is, introduce yourself in 15 seconds. Myself Darshit Thakkar. My name meaning is the display or visionary, and that is my nature, and that is my future. Okay, taxation या CFO, किसमें ज्यादा टेंशन और किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन? दोनों में। कोई क्लाइंट या कंपनी जिसका बैलेंस शीट देख के ही आपको शॉक लग गया हो? एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की कंपनी थी जिसमें मैंने जब उसकी बैलेंस शीट देखी तो लिटरली शॉक। आपका स्टाइल एक्सेल मास्टर या गट फीलिंग गाय? एक्सेल मास्टर। रियल एस्टेट या फूड इंडस्ट्री, किसने ज्यादा पेशेंस टेस्ट किया आपका? रियल एस्टेट। फ्रैक्शनल सीएफओ बनने का डिसीजन या रिस्क या फिर स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी। फाइनेंस वर्ल्ड में एक चीज जो कभी समझ नहीं आई? प्लानिंग ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। एंड एक वर्ड में दर्शित ठक्कर को एक्सप्लेन करना। दर्शित ठक्कर इज अ विजनरी पर्सन। ओके, राइट दर्शित, सो नाउ लेट अस एंटर इनटू द टॉक, जो कैंडिडेट टॉक आपकी जर्नी के बारे में होगा, है ना? सो करंटली यू आर वर्किंग विथ रियल एस्टेट एज वेल एज फाइनेंस इंडस्ट्री। अब ये जर्नी जो है अभी आपकी है, उससे पहले के जो डेज थे, जो अर्ली डेज थे, वहां की स्टोरी क्या थी? एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड, योर अर्ली डेज की, जहां पे इवन यू कैन टॉक अबाउट योर एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या रहा है एंड हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड। सो born and brought up in Ahmedabad. ओके, फैमिली, छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली. Then I completed my graduation 2005, and after that 2002, that was I was the vision I have to do my CA. So I started in CA with my graduations. okay. After 2005, I continue with that. In 2007, I clear my internship. Obviously, all the trainings and everything completed. But after that, there is in final stage. There is a difficult time period for me because I appear for not clear, and there is another side of family requirements. So I choose the career. Start with the different industry, like from Claris to Adani. So start with the pharma to cement to the consumer durable to the real estate. Work with the different industry and get the opportunity with the different sector. At that time, I thought I have to do something Right. for myself. So in 2000, the idea comes in my mind from 2015, Okay. but unable to think that much about how to do, where to do, where to start. So all these questions in mind. Right. In 2018, I completely decided now I have to do for myself. So in 2018, I have start one of the company name is the Ornic Domes. The company's vision is that whatever the persons who complete their graduations,
their first requirements come with the job. Because every person, those who are in market, they are searching for they go into two way, either into the service industry, Right. other or own family business or the business oriented by. So those who are required jobs, they are moved into the service industry. So my company's main goal is service industry give the recruitment consulting. After getting the job, their first requirements come with their financial planning as well as the taxation planning. बिकॉज अब आप जॉब में कहीं लगे हो तो उसके पहले फर्स्ट ही जैसे ही आप एंटर होते हो आपकी सीटीसी एंड एवरीथिंग फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हाँ कितना टैक्स लगेगा वो तो पता होना चाहिए. सो आई एम गिविंग दी कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर दी अकाउंटिंग टैक्सेशन विच इज माई दी पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल CFO. Okay. And with that there is a 2-3 more ancillary services. In same year, after 6 months, I think about because you are into the service industry, so more और people are required कि प्लानिंग तो करना है, टैक्स का सब कुछ करना है, Right. पर उसमें एक ऑप्शन था रियल एस्टेट. एंड आफ्टर दैट रियल एस्टेट जो माइंड आया कि भाई इन्वेस्टमेंट भी लोगों को करवाना होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई है बिकॉज दे आर स्विच फ्रॉम अनदर सिटीज, यहाँ आना स्विच करना, तो प्रीमाइसिस भी ढूंढते हैं कि भाई हाँ हमारे रिलेटिव्स को चाहिए, किसी को चाहिए, तो मेरे पास वो रिक्वायरमेंट्स भी आना सर. देन आई स्विच टू इन रियल एस्टेट एंड नाउ इट्स रियल एस्टेट एंड द CFO बोथ आर माई जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ माई बिजनेस. सो इन अब क्या था कि उस टाइम पीरियड में 2019 तक तो सेम फर्म के उसमें था. Right. ऑब्वियसली मैं खुद लोगों का प्लान करता हूँ तो मुझे खुद का प्लान करना पड़ेगा. Of course. सो उस टाइम पीरियड्स में मैंने जो मेरी जो भी सर्विसेज थी उसकी फर्म्स को डिवाइड कर दिया बिकॉज ड्यू टू द टैक्स प्लानिंग, ड्यू टू दी एवरीथिंग सिस्टमैटिक, ऑब्वियसली उसमें पार्टनर्स ज्वाइंट होते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग एडवांस में रखना पड़ता है. सो दैट इज द रीजंस. मेरी जो अभी करंट जो मेन कंपनीज अभी जो ऑन गोइंग चल रही है दैट इज दी फॉर द रियल एस्टेट द आइडियल डोर रियलिटी एंड फॉर द CFO फ्रैक्शनल सर्विसेज के लिए कंपनी नेम होती इनविक्टा ग्रोथ सॉल्यूशंस. That is my fractional CFO services companies thing. So with these two companies, I am giving the service to the industry right now. Super. Darshit, this is a long journey, I would say. Why? Because you have experience of starting multiple businesses to managing multiple businesses, and even in today you have multiple businesses. ठीक है. Yeah. अब ये पूरा आपका जो जर्नी था, in fact, if I talk about your past wherein you were working for some other organizations, like you have the journey from Claris to Adani and now to the entrepreneurship. ठीक है. So ये पूरी जर्नी में what were the turning points जहाँ जिसने आपको एक लाइफ लर्निंग लेसन दिया, या फिर आपको लगा कि नहीं ये एक टर्निंग पॉइंट है जो आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ा मूव या फिर बहुत बड़ा एक चेंज आपको मिला? उसमें थॉट प्रोसेस ये थी कि जॉब के टाइमिंग्स रहते थे बिकॉज आप एक कंपनीज में लेवल पे पहुंचने के बाद दैट इज अ टाइमिंग्स जो रहता है ना, टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. बिकॉज ऑफ टीम है, टीम वर्क, टीम से काम भी लेना है, उसको मैनेज भी करना है. सो आप कंपनी को टाइम देते हो. उसके बजाय मेरे माइंड में जो थॉट प्रोसेस आई कि मैं कंपनी को इतना टाइम देता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज जो है मैं इतनी देता हूँ, तो यही एक्सपर्टाइज मैं खुद के लिए जब यूज करूंगा, राइट, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ. एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि आई स्विच फ्रॉम जॉब टू एंटरप्रेन्योर. Okay, Darshit, you have got lot of in-depth learning about taxation, और वो taxation वाला जो role था, how do you think it is currently helping you to build a mindset? सी टैक्सेशंस एक ऐसा है कि कोई भी चीज आप इवन नॉमिनल चॉकलेट भी परचेस करते हो ना, उसमें भी टैक्स लग के टैक्स लगता है, राइट, बिकॉज यू आर द एंड यूजर्स. जितनी भी कंपनीज है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट बनाती है, कुछ भी करती है, बट अल्टीमेटली एट द एंड वो टैक्स का बर्डन जो रहता है ना कंज्यूमर पे ही होता है. सो एवरीथिंग. सो वो चीज जो है उसमें प्लानिंग ऑब्वियसली. अब
काफ़ी सारे लोग होते हैं टैक्स इवेजन करते हैं, बट हम जो सर्विसेज देते हैं उसमें टैक्स प्लानिंग करते हैं। Right. टैक्स प्लानिंग के थ्रू जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो क्लाइंट के लिए यूजफुल और फ्रूटफुल रहता है। तो दैट इज द मेन थिंग। दर्शित, ये व्हेन वी से फ्रैक्शनल सीएफओ है ना, तो इट्स अ न्यू टर्म, इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी। अब फ्रैक्शनल सीएफओ जो है वो लोगों को समझाना, उसकी सर्विसेज, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझाना, और उसमें उसका जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि जहाँ पे आपने एक क्लाइंट को ये एक्सप्लेन किया, अब वो ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ये पर्टिकुलर मेथड को समझ रहा है एंड दे आर एक्सेप्टिंग कि यस ये है। तो उसमें क्या चैलेंजेस आती है? उसमें चैलेंजेस ये आती है सी और पहले आप ये बताओ कि ये फ्रैक्शनल सीएफओ होता क्या है? फ्रैक्शनल सीएफओ इज दी लाइक फ्रीलांसर। ओके। फ्रीलांसर्स, अब बड़ी बड़ी कंपनीज में तो क्या होता है कि दे हैव दी सीएफओ पोजीशंस इन दैट कंपनीज, बट स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज होती है तो उसमें क्या होता है कि उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यस फुल टाइम सीएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट नेसेसिटी होती है। बिकॉज सीएफओ वर्ड जो है ना, उसकी जो क्वालिटीज उसमें आप देखो तो लीडरशिप क्वालिटी, देन प्लानिंग, बिल्कुल, then accounting and taxations, risk management, so all the things जो रहता है ना, तो वो सारी चीजें अब आपने एक अकाउंटेंट या सीनियर पर्सन रखा, बट उसमें वो सारी चीजें होना मुश्किल है। यस। सो यू नीड सम पर्सन्स लाइक जो इन सारी चीजों को मैनेज कर पाए, प्लानिंग कर पाए, और उसको उसकी सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको फिलफिल कर पाए। तो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रैक्शनल सीएफओ इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके, अब ये एक्सेप्टेंस के बारे में वापस आ जाते हैं। वहां पे बताइए कि कितना एक्सेप्टेंस है लोगों का इस कॉन्सेप्ट को लेके? इस कॉन्सेप्ट को लेके एक्सेप्टेंस बहुत है। दैट इज मेन डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। अब मैंने बताया था कि मेन इशू क्या आता है कि अभी करंट जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होती है, हाँ, उसमें ओनर प्लानिंग तो करते हैं, पर काफी सारे लोगों को उसके अलावा के ऑप्शंस, लाइक हर किसी बिजनेस में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, राइट। अब ओनर जो सोचता है उसकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचता है, पर सीएफओ जो होता है ना, वो डिफरेंट एंगल्स उसको आइडियाज ऑप्शंस सजेस्ट करता है और उसके बेसिस के ऊपर होता है। सो रिसेंट में ये सारी चीजें फ्रैक्शनल सीएफओ की रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। रीजन बीइंग मेन थिंग्स, फुल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट वाइज भी उस हिसाब से रहता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको आपकी कॉस्ट में और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्सन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। करेक्ट। सो दैट इज नाउ करंटली मेजर कंपनी। एंड सेकेंड, दोज कंपनीज जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आती है, अब क्या होता है, उनका अभी सेटअप नहीं हुआ है, उनको कंप्लायंसेस पता नहीं है, सेटअप करना है, यहाँ के लॉ पता नहीं है, प्लानिंग कैसे करे, दे आर वहाँ की कंपनीज के डायरेक्टर जो कोई भी हो, तो एवरी टाइम्स तो पॉसिबल है नहीं कि वो यहाँ पे आके करे। तो ऑब्वियसली एक पर्सन रखते हैं, अकाउंटेंट रख सकते हैं, राइट, वो बेसिकली कर पाएगा। बट यहाँ पे जो प्लानिंग है, ऑब्जर्वेशन है, रिपोर्टिंग है, यहाँ के कंप्लायंसेस एज वेल एज वहाँ की कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लायंसेस, तो वो सारे जो रहते हैं फ्रैक्शनल सीएफओ के थ्रू उनके फुलफिल हो पाते हैं। दर्शित, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, और मैं एक दूसरा वर्ड भी है जो बहुत फेमस हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ पे लोग बोलते हैं वर्चुअल सीएफओ। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल सीएफओ एंड वर्चुअल सीएफओ आर द सेम थिंग्स और बोथ आर डिफरेंट? बोथ आर सेम। तो जहाँ पे वर्चुअल सीएफओ जब लोग बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से कई बार ये एक वर्चुअल सर्विस की तरह ही लोग उसको ट्रीट करते हैं, उसको देखते हैं। बट फ्रैक्शनल सीएफओ में फिजिकल मीटअप्स होते हैं, फिजिकल इवेंट्स होते हैं। यस। अच्छा, बहुत होता है। ओके, और वर्चुअल सीएफओ जो होते हैं उसमें भी लोग फिजिकली कस्टमर को मिलते हैं? यस ऑब्वियसली। ओके, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो दोनों में ही रहेगी बिल्कुल, इट इज रिक्वायर्ड। यस, उसके बिना, बिकॉज फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एनी बिजनेस। यस मेन थिंग्स। दर्शित, लाइफ एज अ कॉर्पोरेट लीडर वर्सेस लाइफ एज अ फ्रैक्शनल एक्सपर्ट, क्या फर्क महसूस करते हो आप? Leader में you have to manage the team and report to the senior persons or the owners of the companies. Right. As an entrepreneur or as a freelancer or as a virtual CFO,
we have to manage the team, manage the requirements of client. बिकॉज एज ए लीडर उस कंपनी में आप काम करते हो किसी और के लिए, बिल्कुल ओनर्स के लिए, मतलब जहाँ पे भी यू आर हायर फॉर दैट। इसमें फ्रैक्शनल सीएफओ में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग्स, बिकॉज उसमें आप क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज द मेन थिंग फॉर फ्रैक्शनल सीएफओ। उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ही से वी आर डिसकंटिन्यू विथ यू और वी फाइंड अनदर सोर्स। क्लाइंट के केस में ये चीज रहती है, कॉर्पोरेट्स में कम चीज रहती है, होता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस टोटली डाउन होती है, ऐसा कुछ भी होता है। बट एज ए एंटरप्रेन्योर में और या तो फ्रैक्शनल सीएफओ में वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लाइक रिस्क फैक्टर एंटरप्रेन्योर में ज़्यादा रहता है। पर दर्शित, जब एक हम फ्रैक्शनल सीएफओ की बात करते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी बिजनेस ओनर एक पर्टिकुलर रोल में हर बार एक बंदे को फुल टाइम देखता है। अब जब आप उसको एक फ्रैक्शनल सीएफओ के रूप में आप बताते हो, उनको बताते हो, पिच करते हो, ठीक है, तो आप फिर उसको कैसे हैंडल करते हो कि जहाँ पे उनको लगे कि ये फुल टाइम नहीं है बट 100% फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है। क्लाइंट के साथ जब मीटिंग स्टार्ट होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास उसकी रिक्वायरमेंट, लाइक स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट इज हीज रिक्वायर, और जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बिजनेस के ऊपर ईच एंड एवरी जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको जो भी रहते हैं पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या नहीं, क्या कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या हमारे तरफ से सर्विसेज रहेगी, तो डे टू डे उसमें सारी चीजें, मतलब जब भी डिस्कशन होता है वो क्लैरिटी प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ एवरीथिंग वो चीज क्लियर करते हैं। तो वहां पे वो चीज क्लियर रहती है कि दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज नॉट अबाउट टाइम बट इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये चीज करनी है तो करनी है, टैक्स प्लानिंग करना है तो करना है, टैक्स पे करना है तो करना है, ये ड्यू डेट है तो ड्यू डेट पे मिटिगेट करवाना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वे ऑब्वियसली क्लाइंट सेटिस्फाइड, बिकॉज उनकी क्या है कि भी हाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सारी चीजें फुलफिल हो रही है, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लाइंट। और दर्शक, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो आज हर कोई एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगता है कि फाइनेंस ऐसी चीज है कि जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने अभी तक जो भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है वहां पे आपको क्या ऐसे पॉइंट्स मिले हैं कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है दे हैव मिसअंडरस्टूड द फाइनेंस? काफी सारे लोग होते हैं कि भी हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्या मुझे पता है, बट ऑब्वियसली आप अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में हो तो आपको नॉलेज होगा। अदरवाइज बिजनेसमैन रहते हैं, उनको रिक्वायरमेंट रहती ही है, बिकॉज उनका फोकस जो रहता है ना, मेरे पास पैसा कैसे आता है और किस तरह से आता है, उनका मेन वो मोटो होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली प्लानिंग करना, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना, हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्स, एवरीथिंग, तो उसमें, और इवन कॉस्ट शेविंग, तो सारे फैक्टर्स रहते हैं। अब हर चीज में हर किसी को नो डाउट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक लेवल का उसको नॉलेज होगा, बट देयर इज अनदर ऑप्शन इन दैट, माइट बी उसने एक्सप्लोर किया होगा पर उसको लगता होगा विजिबिलिटी नहीं है, पर उसके फैक्टर्स जो है जब तक उसको नहीं पता चलेंगे तब तक वो नहीं कर पाएगा। सो बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता होता है बट कर नहीं सकते, या तो रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज अब मेरी कैपेसिटी है, मैं इतना जाऊंगा, सही बात, उसके आगे वाला जो चीज है वहां मेरी एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो वहां पे जो रोल रहता है दैट इज दिस फ्रैक्शनल सीएफओ या फाइनेंस एडवाइजर्स, उनका रहता है, और वो वहां से उनको प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अब आज मेरे पास 1000-2000 करोड़ पड़े हैं, मैं शायद उसको 1-2 ऑप्शंस में इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करूंगा, बट देयर इज अ मल्टीपल, और उसमें भी मेन चीज रहती है रिस्क। ऐसा तो है नहीं कि भी यहाँ पे डाल दिया और रेवेन्यू आएगी, बिल्कुल, समवेयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में रिस्क रहता है, तो रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सके, दैट इज द मेन थिंग। इन दैट सिनेरियो फ्रैक्शनल सीएफओ की रिक्वायरमेंट और हमारी एंट्री। सुपर्ब। और दर्शित, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर फ्यूचर गोल्स
या फिर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर यू रियली वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? Currently I'm based in Ahmedabad, Gujarat level, and my next year 5 years planning I'm expand my business to the pan India level, and after that in future that might be a possibility, expand up to the pan world. लेट मी नो, आई मीन आप जब काम नहीं करते होते हो, है ना, तो वो वर्किंग आवर्स के अलावा के जो टाइम है वो आप कैसे स्पेंड करते हो? व्हाट आर योर हॉबीज, और इसके अलावा क्या आपके इंटरेस्ट है, और आपके कैसे लाइफ और वर्क को बैलेंस करते हो? So as I'm saying, मेरे साथ 7 दिन वर्किंग ही रहते हैं, अच्छा. but I manage, I plan my free times, like I watching the movies. I'm a sports person, so I have a interest in my hobbies, the main playing cricket, table tennis. So this is my main hobby. Even also traveling. So time adjustment, planning, और उसी हिसाब से, बिकॉज उसी इंडस्ट्री में है तो एवरीथिंग, हर चीज़ का प्लानिंग, फैमिली को कितना टाइम देना है, कब देना है, क्या है, सारी चीज़ों का प्लानिंग के हिसाब से अपने काम को, जॉब, काम एज वेल एज दी बिजनेस एज वेल एज दी फैमिली, तो तीनों चीज़ों को मैनेज कर. ओके दर्शित, एक फॉर्मूला बताओ जो हर बिजनेस को याद रखना चाहिए. वन फॉर्मूला फॉर दी एवरी SME और बिजनेस ओनर, प्लानिंग एंड डेडिकेशन. ये दो चीज़ होगी ना, everything will be successful and fruitful for them, because obviously ultimately at the end fruitful. बिजनेस करो पर बिजनेस में भी फ्रूटफुल होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग्स. बिल्कुल. ओके, अब आपका जो रियल एस्टेट, इनफैक्ट फाइनेंस और CFO, ये सारी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉमन जो है वो लेजर की बहुत बात होती है. तो इफ योर लाइफ वाज अ लेजर, ठीक है, then what would be the biggest asset on it? My biggest asset is my family. Because see, जब आप सर्विस इंडस्ट्री से मूव ऑन होते हो ना बिजनेस में या एज एंटरप्रेन्योर में, सो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो रहती है ना वो आपकी फैमिली. अगर आपकी सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली रही, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड मेरे लिए वो जो स्विच पीरियड जो था, सर्विस टू बिजनेस एज एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ द मेन थिंग. और उसमें मुझे मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट किया, चाहे इन वे ऑफ द फाइनेंशियल्स, इन वे ऑफ द मोरल, और इन एवरी वे. मतलब ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही आई अचीव वॉट एवर ओनली एंड ओनली ड्यू टू दैम. सो ऑब्वियसली मेरी उसमें आप लेजर में देखोगे ना, तो फैमिली जो है दैट इज इट्स अ बिगेस्ट एसेट. Yes. Okay. And that's it. Before we end or conclude, what is one line message you want to give to the young entrepreneurs, और आज की जो नई जनरेशन, नए स्टार्टअप्स जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, what will be one line message for them? One line message for them: first vision, second planning, and third dedications. अगर विजन होगा देन प्लानिंग कर पाओगे, और प्लानिंग में आपका डेडिकेशन होगा, देन यू रीच योर गोल. Absolutely. Thank you so much, Darshit. It was pleasure talking to you, and a very insightful, lot of things you have shared about the CFO services mainly, and about your journey. Thank you so much. Thank you so much.